Good evening, everybody. बच्चे, today we'll be picking up some questions based on mole concept. जो हमारी previous class थी, उसमें बच्चे हमने mole concept पे based numericals किए थे. All right. Sorry, numericals नहीं किए थे. We discussed the basic formula that we have to use when we have to solve mole concept numericals. So, बच्चे, as I had promised, I have a worksheet which is related to different types of questions which you can get in mole concept. Okay, so we'll be picking up these questions one by one. उसके बाद बच्चे मैं ये वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ. I'll put it on class plus app group, जो आपका बैच है ऑनलाइन ऐप पे, उधर भी शेयर करूंगा ये वर्कशीट. आई होप बच्चे आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी. वी हैव एडेड वीडियोस आल्सो ऑन द ऐप, so now you can go on to the app and for your reference you can go and see the videos also. All right. Okay, so bache, the first question that we will be picking up, the first type of questions, these questions are based on calculation of number of moles in a given mass. आपको पर्टिकुलर मास दिया होगा, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वाइस वर्सा, mass from moles or moles from mass. So this is the first category. All right, so I'll be just picking up this question. Okay, मैं हर एक कैटेगरी में से एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा. दूसरा जो क्वेश्चन होगा उस कैटेगरी का आप खुद करेंगे. All right, I'll put the worksheet and then you will try it. खुद करेंगे. All right, so the first question is calculate number of moles in 100 gram of water. Second is number of moles in 100 gram of iron. All right, तो बच्चे इसके अंदर अगर हम देखें हमें क्या करना है, you have to calculate number of moles. तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, ओके, फर्स्ट लेट मी क्विकली गिव यू द फॉर्मूला ताकि आप उसको आपके दिमाग में वो याद रहे आपको. I'll just quickly write the formulas here. Okay, what we have to use, number of moles is equal to mass given over molar mass. मैंने उस दिन आपको बताया था मोलर मास क्या होता है, the relative atomic mass और relative molecular mass. बस उसे ग्राम्स मोल पर ग्राम कर देना है और ग्राम पर मोल, you will get molar mass. So mass by molar mass equal to, which is further equal to number of particles divided by Avogadro number. Okay, number of particles divided by Avogadro number. All right, this is the relation. तो बच्चे इस रिलेशन को यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो बच्चे यहाँ आपको मास गिवन है 100 ग्राम ऑफ वाटर, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट लेंगे. ऑलराइट, तो इसको कैसे सॉल्व करना है केयरफुली देखिएगा. We have 100 gram of water. This is the first part. Okay, just simply put it as 1. First part हम solve कर रहे हैं. तो बच्चे 100 gram of water. तो बच्चे सबसे पहले calculate molecular mass of water. Or let's say what is the mass given? Mass given कितना है? We'll put it as small m. Mass given of water is 100 gram. All right. Then what is the molecular mass of water? Molecular mass of water, it is equal to, water का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, H2O. तो बच्चे what would be molecular mass of water? Oxygen is 16, hydrogen is 1. तो बच्चे it would be 18U. Molecular mass of water will be 18U. क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन का जो मास है, relative atomic mass, it is 1U and oxygen is 16U. बिल्कुल बेसिक है.
तो इसको अगर मैं ऐड अप करूं तो इट कम्स आउट टू बी 18 U। अब अच्छा, व्हाट वुड बी द मोलर मास? व्हाट वुड बी मोलर मास ऑफ वाटर? आपको बच्चे क्या करना है, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है इसमें बस आपने सिंपली यूनिट चेंज करना है, ग्राम पर मोल। द मोलर मास वुड बी मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, वो उसका मोलर मास बन जाएगा। अब बच्चे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। दिस इज माय फॉर्मूला, क्योंकि मास दिया हुआ है, मोलर मास मुझे पता है, आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चे पुट दी वैल्यूज गेट दी आंसर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, व्हाट वुड बी दी आंसर? मास गिवन इज 100 grams and molar mass is 18. बच्चे कैन यू टेल मी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस? कितने मोल्स आएंगे? 100 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर। ओके, रितंजय इज सेइंग 5.55, so 18 5s are 90, 10, okay 5.55, all right, that's correct। इसका आंसर आएगा बच्चे 5.55 moles of water। okay, this is my answer। is this clear? ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास निकालो, मास गिवन जो है उसको डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। फॉर स्टार्टर्स लेट डू द सेकंड पार्ट आल्सो, इट इज वेरी इजी। सब करके देखेंगे जल्दी जल्दी। ऑलराइट, व्हाट इज मास गिवन ऑफ आयरन? बच्चे मास गिवन ऑफ आयरन इज 100 grams। मास गिवन हमारे पास कितना है? आयरन का मास गिवन इट इज 56 ग्राम, 100 ग्राम, सॉरी मैंने उसका एटॉमिक मास देख लिया था। तो बच्चे इट इज गिवन एज 100 ग्राम। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन? जो मुझे एटॉमिक मास दिया हुआ है आयरन का, कितना दिया गया है? 56 U। अब बच्चे ये जो आपका एटॉमिक मास है यही इसका मोलर मास भी है, क्योंकि बच्चे मुझे आयरन ही बोला गया है, तो मैं आयरन के एटम्स देख रहा हूं। तो बच्चे इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास वुड बी 56 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, अब बच्चे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास, n number of moles, mass given of iron over molar mass, that's equal to 100 ग्राम। आपके पास 100 ग्राम है डिवाइडेड बाय 56। अच्छा, व्हाट वुड बी द आंसर? बहुत इजी है, 100 बाय 56, ओके 1.78, 1.78। मुझे दो बच्चों ने ये आंसर दिया हुआ है तो मैं ये मान रहा हूं कि सही है। 1.78 मोल ऑफ आयरन, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, मास मोलर मास, इनको यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। चलो लेट्स प्रोसीड टू दी सेकंड कैटेगरी। इसी में हम सेकंड कैटेगरी भी कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट बट दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस। यहां आपको मास निकालना है, आपको मोल दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन मोल, यू हैव टू कैलकुलेट मास। तो बच्चे द सेकंड पार्ट, यू हैव बीन गिवन नंबर ऑफ मोल्स, आपको यहां मास निकालना है। सो द फर्स्ट पार्ट हियर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इज गिवन। Okay, number of moles of silver, I am doing the first part, या सिंपली लिख लेते हैं moles of silver, mole of silver given, कितने मोल हैं?
यू विल पुट n हियर, सिंबल हमेशा डाला करो ताकि आपको पता लग जाए फॉर्मूला में कहां ये वैल्यू जाएगी। इट इज 0.5 मोल। ऑलराइट बच्चे, व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास ऑफ सिल्वर इज गिवन 108। वो उसका एटॉमिक मास है, उसको सीधा मोलर मास में लिख लो। सो मोलर मास इज कैपिटल M। बच्चे जो आपका एटॉमिक मास है उसी को मोलर मास कहेंगे हम। सो इट इज 108 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, अब बच्चे आपको निकालना है इसका मास। यू हैव टू कैलकुलेट मास कि आपके पास मास कितना है। तो बच्चे इफ आई लुक एट द फॉर्मूला, ये रहा, इधर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? मास बाय मोलर मास। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करिए, मास आ जाएगा। आंसर बताइए, व्हाट विल यू गेट? मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ओके, तो इफ आई पुट दी वैल्यू, अगर मैं बच्चे वैल्यू पुट करूं तो इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना है 0.5 एंड मोलर मास इज 108। तो बच्चे 108 का हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मास इज 54 ग्राम्स। 108 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा करोगे, सो योर आंसर वुड बी 54 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, ऑल राइट। बच्चे आई होप आप सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर पाओगे। सेकेंड पार्ट कराने की जरूरत तो नहीं है, यू विल मैनेज। यस, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मैं सेकेंड पार्ट नहीं करवा रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। आई लीव सम क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ आल्सो, ताकि आप खुद भी करो। ओके चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, टाइप 2 प्रॉब्लम्स। अब आपको बच्चे क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गिवन मास और वाइस वर्सा। अब नंबर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो बच्चे मैं इसमें अब नेक्स्ट कैटेगरी ले रहा हूं। ऑलराइट, ओके, लेट मी पिक ऑल। फर्स्ट पार्ट सारा कर देते हैं ताकि सेकंड पार्ट आप खुद करोगे फिर। ऑलराइट, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चे in this question you have to number atoms. You have to calculate number of atoms in 49.25 ग्राम of gold. तो बच्चे यहां मुझे क्या दिया गया है, ये आपको मास दिया हुआ है। मास ऑफ गोल्ड इज गिवन। ऑलराइट, तो बच्चे मास ऑफ गोल्ड देखेंगे। मास ऑफ गोल्ड इज गिवन, small m, value is 49.25 grams. All right, this is the mass. अब अच्छा इसका मोलर मास क्या होगा गोल्ड का? It is given here 197. So its molar mass is given. Molar mass is 197. हमने इसका बच्चे एटॉमिक मास जो है उसको सीधा मोलर मास में लिख लेंगे, ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चे, ये इसका मोलर मास है। अब बच्चे यहाँ आपको नंबर ऑफ एटम्स डालने हैं, तो इसमें एवोगैड्रो नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, कैपिटल N A, दिस इज माय एवोगैड्रोस नंबर, और इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10⁻23, and what you have to do, you have to calculate number of atoms.
So you have to calculate number of atoms in it. नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो बच्चे देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यहां मोल कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। हम ये रिलेशन जो है इस तरीके से यूज करेंगे, मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू n ओवर एवोगैड्रो नंबर। आई जस्ट स्क्रॉल डाउन टू शो यू द फॉर्मूला। ये देखो दिस इज माय रिलेशन, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा अभी, ठीक है, मैं ये रिलेशन यूज कर रहा हूं। सो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए अब आप इस फॉर्मूला को यूज करके देखिए, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हियर। मास गिवन इज 49.25। सो बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 6.022 into 10 raised to power 23. This is my Avogadro number multiplied by what is mass given. Mass given is 49.25 and divide this whole relation. Okay, ऐसे भी लिख सकते हैं 49.25 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 197. What would be your answer? यहाँ एक्सपोनेंट्स हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली आंसर कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो 49.25197, तो बच्चे 49.25 इंटू 4 करोगे तो इट विल बिकम 197. So if I cut this, it would be 1/4. तो मुझे क्या करना है बच्चे, n is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 4. 49.25 multiply by 4 is 197. तो मतलब एवोगैड्रो नंबर को 4 से डिवाइड करना है। तो बच्चे अब ध्यान से देखिए 10 raised to power 23 तो वैसे ही रहेगा, जस्ट डिवाइड 6.022 by 4। कितना आएगा आंसर बताइए। रितंजय इज सेइंग 1.5 into 10 raised to power 23। रितंजय 1.5 अगर कर दोगे तो 1.56 बचे, इट शुड बी 1.505, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करिए 6.022 है, तो बचे 6.022 को अगर हम 4 से करें तो इट शुड बी 1.5055। ओके, ग्लेना इज गिविंग मी द आंसर एज 1.5055, क्योंकि बच्चे 6.022 है, अगर 6 होगा तो 1.5 आ जाएगा सीधा। इट शुड बी 1.50, ओके 1.505। ऑलराइट, तो बच्चे इसका आंसर आएगा 1.505 into 10 raised to power 23. That is the answer. Is this clear everybody? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। Number of molecules in 18 gram of water. This is the second part. अब बच्चे mass given of water, it is 18 gram H2O. इसका मास इतना है, तो बच्चे इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास भी इतना ही है, क्योंकि बच्चे अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा वाटर का
तो 18 ग्राम, सॉरी 18 यू ही आएगा। तो बच्चे मोलर मास कितना हो गया इसका? इट इज 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि इसका मोलर मास और मास गिवन सेम ही है। तो बच्चे अगर मैं इस तरीके से देखूं, दैट सिंपली मींस मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू n ओवर Na। और अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो बच्चे यहां जो आंसर आएगा क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बच्चे रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि यहां वाटर दिया था, आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है कि इस मास में मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं। तब हमने वाटर का मोलर मास लेके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और बचे 1 मोल है तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ही आएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे कई बार क्या होता है, यू माइट बी गिवन अ कंपाउंड और आपको बोला जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी निकालो। जैसे बच्चे इफ आई केयरफुली सी, देखो हम इसको थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा सॉल्व करके देखते हैं। लेट मी से आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, मेरे पास 1 मोल वाटर का है। तो बच्चे व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इसके अंदर इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। ध्यान से देखिए, इज इट क्लियर? अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, I have 1 mole of water molecules. So can I say in this 1 mole of water molecules, I have 2 moles of hydrogen atoms and 1 mole oxygen atoms? क्या मैं ये कह सकता हूं? ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चे अगर मैं एक मॉलिक्यूल वाटर का लूं, if I take 1 molecule of water, it has 2 atoms. It has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. तो बच्चे वो मोल में भी लग गया। अगर मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो दैट मींस आई हैव 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑक्सीजन एटम। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई एवरीबॉडी? इफ इट्स क्लियर एवरीबॉडी गिव अ थम्स अप, सो आई शुड नो कि हाँ majority of the children have understood this. ओके ऑल राइट। देखो बच्चे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना? तो बच्चे एक मोल के अंदर क्या आएगा? एक मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे और 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो अब बच्चे देखो, अगर आपके पास 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चे 2 मोल, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? इफ यू हैव 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? आपको क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ, अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालो, इसमें निकालो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो कैसे निकालेंगे? यू विल सिंपली डू व्हाट? यू विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आपके पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? हमें उसे डबल करना है, तो इट वुड बी इक्वल टू, देखो बच्चे 6.022 का डबल क्या है? इसको ऐड करके देख सकते हो। 6.022 का डबल क्या है? 12.044। 12.044, तो इट वुड बी 12.044 इंटू 10⁻23। ये तो आप याद भी रख सकते हो कि 6.022 का डबल है 12.044, उसका हाफ है 3.011। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है बच्चे, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल हियर। तो बच्चे इट वुड बिकम 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स।
इज दिस क्लियर? ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो मास गिवन था उससे मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए। मेरे पास कितने मोल वाटर है, उस मोल के हिसाब से कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर मैंने उसके मॉलिक्यूल के जो मोल्स बन रहे हैं उस हिसाब से हाइड्रोजन एटम्स निकाल लिए। अब मुझे बता सकता है कोई इसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम थे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर भी बचे एवोगैड्रो नंबर ही होगा, बिकॉज यू हैव 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 1 मोल, सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं? 1, तो उसका नंबर क्या बनेगा? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इज दिस क्लियर? ऑक्सीजन एटम्स would be equal to number of water molecules because they are equivalent, 1 mole 1 mole. Is that clear? समझ आ गई बात? चलो ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी। ओके, ऑल राइट, इसमें भी बच्चे क्या करेंगे? I will just pick up this question. All right, ये क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद करके देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻21 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238। बच्चे यूरेनियम इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यहां बच्चे आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, आपको मास निकालना है। तो बच्चे यहां अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मोलर मास ऑफ यूरेनियम, मोलर मास ऑफ यूरेनियम, सॉरी कैपिटल एम लिखूंगा, मोलर मास ऑफ यूरेनियम कैपिटल एम। तो बच्चे 238, यही इसका मोलर मास है, 238 ग्राम पर मोल। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसी को ग्राम पर मोल लिख लेंगे, ये इसका मोलर मास बन गया। अब बच्चे नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन, नंबर ऑफ एटम्स गिवन कितना है? 10⁻21। बच्चे 10⁻21 ये गिवन है। व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रोस नंबर, इसकी वैल्यू हमें पता है, एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 10⁻23. This is the Avogadro number. Can you calculate mass? क्या आप मास निकाल सकते हैं? रिलेशन क्या यूज करेंगे? मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। बच्चे सिर्फ रिलेशन को क्या करना है? रीअरेंज करना है। ये देखो, ये रहा रिलेशन, मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट मास गिवन। मैंने उसको रीअरेंज करके लिख दिया है सीधा। आप बच्चे वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। मास, मोलर मास किसके इक्वल है? मोलर मास इज 238, number of particles given is 10⁻21 divided by Avogadro number 6.022 10⁻23। ऑल राइट, इसको ऊपर ले जाओगे, चलो सॉल्व करके देखो, सॉल्व दिस आउट। बच्चे ये 10⁻23 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां तो 10⁻⁻2 आ गया, और 238 को 6.022 से देखो डिवाइड करके, व्हाट यू विल गेट?
Okay, 6, let's see, let me divide. (238) divided by 6.022. बच्चे मैंने कैलकुलेटर पे करके देखा, इट इज कमिंग आउट टू बी 39.521. सो बच्चे 39.521. और बच्चे ऊपर क्या बच गया, ये 10⁻23 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इंटू 10⁻⁻². तो बच्चे अगर ये 10⁻⁻² नीचे आ गया तो डेसिमल लग जाएंगे, तो इट वुड बी इक्वल टू 0.3952 ग्राम्स. एक बार चेक करिए क्या यही आंसर आएगा. चेक एवरीबॉडी. आई हैव डिवाइडेड 238 बाय 6.022, तो मेरा आंसर आया 39.52. और बच्चे ऊपर 10⁻23 है तो 10⁻21 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻2 बच गया, आ जाएगा 100 बन जाएगा. तो डेसिमल शिफ्ट करो 0.3952. यही आंसर आया सबका. Is this the answer you have got, everybody? बच्चे आई होप सब करके देख रहे हैं. Please solve the question along with me. Is it clear? All right. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन. ओके, तो नंबर इज डन. अब बच्चे a very interesting question. You have to calculate actual mass. Actual mass निकालना है. एक्चुअल मास मतलब एब्सोल्यूट मास. जब बच्चे हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम एग्जैक्टली मास निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मास, विद हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. तो बच्चे मैं ये दोनों एग्जांपल लूंगा. ओके, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एक्चुअल मास, एग्जैक्ट मास दोनों का, एटम ऑफ कॉपर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट, तो बच्चे इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन. नंबर 1 देखिए. ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट. यहां बच्चे कॉपर का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है. लेट मी जस्ट क्विकली चेक. आई थिंक इट इज 63.5. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, 63.5 है. So atomic mass of copper is 63.5. तो बच्चे that would be its molar mass. Molar mass of copper, it is 63.5. (63.5 ग्राम पर मोल. ठीक है बच्चे, ये मोलर मास है कॉपर का. अब बच्चे आपको एक एटम का निकालना है मास. तो बच्चे नंबर क्या होगा. नंबर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही नंबर ऑफ एटम क्या है, मुझे एक ही का निकालना है. It is equal to 1. I know the Avogadro number. I know the Avogadro's number. The value is 6.022 10⁻23. बच्चे you have to calculate absolute mass. आपको मास निकालना है. मास ऑफ सिंगल कॉपर एटम. तो बच्चे देखो रिलेशन वही बनेगा, बहुत सिंपल है. मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, इट इज इक्वल टू n ओवर एवोगैड्रो नंबर. तो बच्चे मास निकालना है और 1 हो जाएगा ये. तो बच्चे मास वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय
6.022 10⁻23। ओके, अब बच्चे प्लीज कैलकुलेशन देख के नहीं डरना है। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आ गया मैंने कैसे फॉर्मूला यूज किया है एवरीबॉडी? मैंने नंबर 1 ले लिया, नंबर ऑफ एटम इज 1, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यहां कैलकुलेशन देख के नहीं डरना है। ये 10⁻23 ऊपर जाके 10⁻⁻23 हो जाएगा। ओके, अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगाऊं, इट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022। तो बच्चे आई नो 6 10s are 60। 6 10s are कितना होता है? 60 होता है। एंड 6 11s are 66। 6 10s are 60, 6 11s are 66। तो बच्चे ये जो नंबर है ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है और एग्जैक्टली 63 भी नहीं है, 63.5 है। तो बच्चे मैं ये मान के चल सकता हूं कि आंसर 10 और 11 के बीच में आएगा। तो आई कैन टेक इट एज 10.5। मैं क्या कर सकता हूं बच्चे? मैं इसको 10.5 ले सकता हूं। कैन आई टेक इट एज 10.5? अगर आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो 10.5 ही आएगा। रितिंजय ने आंसर निकाल लिया है। तो बच्चे देखो, अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर आ सकता है। ऊपर है 63.5, नीचे है 6.022। अगर बच्चे सिर्फ 6 होता तो 6 10s are 60, 6 11s are 66। तो 6 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है 6.022 और ऊपर 63.5 है। तो मैं ये मान के चल सकता हूं 10.5 आएगा। क्या यही आ रहा है? चेक करो आप खुद, चेक योरसेल्फ। क्या यही आ रहा है? यस, अप्रोक्सीमेशन भी यूज हो सकती है। तो 10.5 इंटू 10⁻⁻23। पर बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻24। क्या आना चाहिए आंसर बताइए? 10⁻⁻24 और 10⁻⁻22 क्या आना चाहिए? ओके, it should be 1.055 into 10⁻⁻22। देखिए एक बार चेक करिए, इज दिस क्लियर? सबका यही आंसर आ रहा है? ओके, तो देखो बच्चे, एक सिंगल का कॉपर एटम का हमने मास निकाल लिया है। अब बच्चे कैन यू कैलकुलेट मास मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मॉलिक्यूल का भी मास आप निकाल पाओगे। अब 44 ग्राम पर मोल ले लो और सेम इसी तरीके से उसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। चलो, आई विल लीव दिस पार्ट फॉर यू। ये पार्ट आप खुद करोगे। ओके, you will calculate the mass of a single molecule of carbon dioxide, not the molecular mass, actual mass. Okay, now let's pick up question number type 4 problem. बच्चे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स निकालने हैं। ये एक्चुअली मैंने आपको वाटर वाले में सॉल्व करके बता दिया है, बट नो प्रॉब्लम्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यहां बच्चे आपको सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल दिया है और आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं वो निकालिए। ऑलराइट, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए सबसे पहले। बच्चे दी मॉलिक्यूलर मासेस, सोडियम इज 23 2s are 46, कार्बन इज 12, 58 plus 48. So if I am not wrong, it comes out to be 106U.
चेक करिए, मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट क्या यही आ रहा है? चेक करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इज इट कमिंग आउट टू बी 106? एवरीबॉडी चेक, सब करेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है सबको। सोडियम 23 है उसका, तो 2 सोडियम है, 23 2s are 46, कार्बन इज 12, तो 46 प्लस 12 इज 58, ऑक्सीजन इज 16, 16 3s are 48, तो बचे 48 प्लस 58, इट शुड बी 106। क्या यही आंसर आ रहा है? बताइए बच्चे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है। 106, ओके, तो बच्चे उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 106U। अब बच्चे व्हाट वुड बी इट्स मोलर मास? इसका मोलर मास कितना होगा? सेम जितना आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है, बस इसका यूनिट चेंज करना है, 106 ग्राम पर मोल, 106 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चे, ये इसका मोलर मास है। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने में बहुत टाइम लगा दिया। ओके चलो, अब बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन 53 ग्राम। अब बच्चे सबसे पहले क्या करो, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकालो कि इस मास में कितने मोल बनते हैं। तो बच्चे मास ऑफ Na2CO3, mass of Na2CO3 given, it is equal to 53 ग्राम। ये मास दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मास ओवर मोलर मास। तो बच्चे इफ आई सी पुट दी वैल्यूज, तो यहां आ जाएगा आंसर, कितने मोल्स बन रहे हैं? 106, इट इज 53/106। तो बच्चे दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ Na2CO3। तो बच्चे आपके पास कितने मोल सोडियम को कार्बोनेट बन रहा है इस रिलेशन के हिसाब से? 0.5 मोल, 53/106 है ना, तो इट इज 0.5। अब बच्चे देखो, अब यहां लॉजिक लगाना है। अगर आपके पास बच्चे 1 मोल होता, if you have 1 mole of sodium carbonate, तो बच्चे उसके अंदर क्या होता? You will get 2 moles of sodium atom, right? You will get 2 mole of sodium atom. In this 1 mole of sodium carbonate, you will get 1 mole of carbon atom. And in this 1 mole of sodium carbonate, you will have, sorry, not 1, 3 mole, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो 3 mole of oxygen. तो बच्चे मेरे पास कितना है? 0.5। तो बच्चे ये सब आधा हो जाएगा, यानी 0.5 के अंदर कितना रह जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम, 0.5 ऑफ कार्बन एंड 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इज दिस क्लियर? कैसे लिखा है मैंने? अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट होता, तो बच्चे उसमें क्या होगा? 2 मोल सोडियम एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। पर बच्चे आपके पास कितने मोल है? आपके पास है 0.5। तो उस हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करके सबका आधा हो जाएगा, यानी आपके पास 1 मोल सोडियम आ गया, 0.5 मोल कार्बन आ गया एंड 1.5 मोल ऑक्सीजन आ गया। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आई? 0.5 में कितना बचेगा? सबको समझ आ गया?
हाँ जी रितंजय। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि सर Na2CO3 में सिर्फ 0.5 मोल है, और अगर हम इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सर वो 0.5 से तो ज्यादा है। हाँ तो 0.5 से ज्यादा ही आएगा बेटा, सोडियम के केस में तो ज्यादा ही आएगा। 0.5 इंटू 2 करो ना। तो 1 आ जाएगा। हाँ तो 1 ही बोल रहा हूं मैं। और कार्बन में कितना आएगा? 0.5 इंटू 1 करोगे तो 0.5 ही आएगा। यस सर। और अगर ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 0.5 करो, कितना आएगा? 1.5। हाँ 1.5। तो 1.5 आएगा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। सर लेकिन इन तीनों को ऐड करेंगे तो सर 0.5 तो नहीं आएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। बेटा सबका अलग अलग बताना है। यू हैव टू टेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अलग अलग। और सर ये 0.5 तब क्या है सर? क्या? सर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3, हाँ तो में से पूरे का 0.5 है, तो देखो, सर अलग एक अलग बहुत करने पर ज्यादा फर्क सिंपल सी कहानी है। अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का हो तो उसमें कितने एटम होंगे? 2 एटम सोडियम के, 1 एटम कार्बन का, 3 एटम ऑक्सीजन के। अब वही चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन मोल पे ले जाओ। अगर आपके पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें कितने मोल सोडियम होंगे? 2 मोल्स। कितने कार्बन होंगे? 1 मोल। कितने ऑक्सीजन होंगे? 3। पर मेरे पास रियलिटी में कितना है मास गिवन के अकॉर्डिंग? आधा। आधा मोल सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाओ। एक ओके सर। में 2, आधा में कितना? 1। सबका अलग अलग निकल जाएगा। ओके इज दैट सर। क्लियर? यस सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं, जो मेरे पास एक्चुअल रिलेशन है, तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं सोडियम के कितने बन रहे हैं? सोडियम का एवोगैड्रो नंबर बन जाएगा 6.022 10⁻23, क्योंकि बच्चे 1 मोल हो गया। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन इज हाफ, तो कार्बन बनेगा 3.011 इंटू 10⁻23। कार्बन के आधे मोल के हिसाब से निकालोगे आप, जो रियल सिचुएशन है। और ऑक्सीजन कितना है? 1.5। तो देखो बच्चे 1.5 कैसे निकलेगा? 6.022 प्लस 3.011, ये बन गया 9.033। बच्चे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल ऐड भी कर लो। 1 मोल में 6.022, आधे में 3.011, तो 1.5 में कितना बनेगा? उन दोनों को प्लस कर दो, 9.033। और दिस इज आवर आंसर। इज दिस क्लियर? बताइए एवरीबॉडी। अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर पाए तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स निकालने आने चाहिए, अगर आ गए तो बस फिर समझ आ गई बात। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी। ओके बच्चे, टाइप, आई थिंक टाइप 5 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके पास 10⁻22 एटम्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। मास गिवन भी दिया हुआ है, आपको मोलर मास निकालना है, कैपिटल एम। तो आप निकाल पाओगे? बताइए। मास गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स है, मोलर मास निकालना है, ये निकालना है। बच्चे आपको एवोगैड्रो नंबर भी पता है, ये तीनों पता है, तो कैन यू कैलकुलेट दिस? 5th क्वेश्चन कर पाएंगे? ऑल राइट, नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, मास गिवन भी आपको पता है, मोलर मास निकालना है। तो मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू n/Na। चलो लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा चैलेंज। ऑल राइट, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए मुझे छोड़ देना चाहिए था, आपको खुद करके देखना चाहिए था। इसमें बच्चे बोला गया है, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 टन ऑफ हाइड्रोजन? बच्चे इन 1 टन हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर? अगर आपके पास 1 टन मास है तो 1 टन मास में कितने ग्राम्स बनेंगे? एनीबॉडी? 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ओके, कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स, 1000 इंटू 1000 करोगे तो इट वुड बिकम 10⁻6 ग्राम्स, ये बन जाएगा ग्राम्स में।
10⁻⁶ ग्राम, काउंट करो एक बार, यही बनेगा। 1000 × 1000 करोगे तो 10⁻⁶ ग्राम बन गया। ऑल राइट। तो बच्चे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास बनेगा 2U, सॉरी नॉट 2U, 2 ग्राम पर मोल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? हाइड्रोजन गैस है ना, H2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 2U, तो मोलर मास विल बी 2 ग्राम पर मोल। तो कैन यू कैलकुलेट नंबर? नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, मास बाय मोलर मास N/Na, ये रिलेशन दिया है, आपको ये निकालना है। कैन यू डू दिस? एक्स्ट्रा चैलेंज का पहला क्वेश्चन कर लोगे? ऑल राइट, चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, आई विल पिकअप दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पिकअप करने जा रहा हूं, ये आप नहीं कर पाओगे अभी, जब अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिलेशन मैंने आपको भी नहीं सिखाया। बच्चे मोल कॉन्सेप्ट में हम एक और रिलेशन लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। वॉल्यूम से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ओके, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है 9th लेवल पे नहीं आता, कई बार एनटीएससी में पूछा जाता है। तो बच्चे इसमें क्या है, इसमें एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 1 मोल, अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 liters. This is the relation. 1 mole of any substance will occupy a volume of 22.4 liters at standard temperature and pressure, STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 मोल है तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? इट विल ऑक्युपाई 22.4 liters. अब बच्चे आपको यहाँ एक नाइट्रोजन गैस का सैंपल दिया हुआ है, 16,500 ml है उसके अंदर। ओके, तो बच्चे अगर मैं इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करूं, इट बिकम्स 22,400 ml। एक बार चेक करिए क्या मैंने कन्वर्जन सही की है? 22.4 लीटर में कितने मिलीलीटर बनेंगे? 22400। हमें याद क्या रखना है, अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 मोल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर, यानी 22,400 ml। वॉल्यूम के साथ भी रिलेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बच्चे अब मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम दैट इज गिवन, वॉल्यूम गिवन इट इज 16,500 ml, ये वॉल्यूम गिवन है। कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? देखो कितना इजी हो गया। नंबर ऑफ मोल्स गिवन, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर ग्राम मोलर वॉल्यूम। बच्चे ये जो मैंने स्टैंडर्ड लिखी है ना, इसको कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बनता है, वॉल्यूम गिवन ओवर ग्राम मोलर वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम गिवन ओवर ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो बच्चे अगर हम इस हिसाब से देखें तो बच्चे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 16500 डिवाइडेड बाय 22400, जो मेरा ग्राम मोलर वॉल्यूम है। तो बच्चे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 से कम आएगा। रितंजय ने आंसर निकाला है 0.73। किसी और बच्चे ने निकाला है? एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, 0.73। 16,500 डिवाइडेड बाय 22,400, ओके चलो, I'll take Ritanjay's answer as final answer. It would be 0.73 mole. All right, but this is the answer. Is this clear? देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो है, उसका आपका वॉल्यूम कितना बनेगा 1 मोल का? 22.4 लीटर।
तो वॉल्यूम के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। सो बच्चे दिस इज इट। अगर हम ये मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कर पाए और या अगर हमें ये समझ आ गए हैं तो बच्चे यू विल बी एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एट योर लेवल। ओके, इसी तरीके से सॉल्व करना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरा लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट निकालने के चक्कर में गड़बड़ करते हैं। ऑलवेज राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कीप अ क्लियर माइंड, ठीक है। ऑल राइट, सो बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। सो वी आर थ्रू विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। हमारा ये चैप्टर 3 केमिस्ट्री का भी खत्म हो गया है। ऑल राइट बच्चे, आई विल बी पुटिंग दिस नोट्स एंड द वर्कशीट ऑन द क्लास प्लस ऐप ग्रुप। आई थिंक आप सबने अब क्लास प्लस ऐप ज्वाइन कर लिया होगा। अब से बच्चे व्हाट्सएप पे मैं कुछ नहीं शेयर करूंगा, सब क्लास प्लस ऐप पे जाएगा। इज दैट क्लियर? आप वहां से डाउनलोड करेंगे, वीडियोस भी वही हैं, वर्कशीट्स भी वही होंगी और ये जो स्टडी है वो भी वहां जाएगा, सब कुछ वहीं जाएगा। हाँ जी पलक। Sir, what is this Class Plus app? You have not joined the batch as yet? No, sir. ओके बच्चे, ये जो मैथ्स ऑनलाइन बठिंडा वाला ऐप है ना, वही क्लास प्लस ऐप है। Okay, sir. ऑलराइट, जो मैथ्स ऑनलाइन बठिंडा वाला ऐप है वही क्लास प्लस ऐप है, उस पे सारा मटेरियल जाएगा, ठीक Okay. है। यू आर इन द साइंस बैच? No, sir. आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक? Yes. ओके, ऑल राइट। तो बच्चे मैं उसका आपको कोड डाल दूंगा इसमें, ठीक है। Okay. अदरवाइज आई विल ज्वाइन यू फ्रॉम द नंबर ऑल्सो। डू वन थिंग, आप क्या करो, अपने नंबर जो है वो एक बार मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, Okay, sir. तो मैं आपको मोबाइल से उस पर ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। Sure, sir. ऑल राइट बेटा, ओके चलो। सो बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर, ठीक है। आई विल पुट दैट मटेरियल ऑन द मैथ्स ऑनलाइन बठिंडा ऐप, ठीक है। इफ यू हैव नॉट जॉइंड द बैच एज येट, प्लीज जॉइन द बैच। उस बैच के थ्रू आप वीडियोस भी देख सकते हो। आज हमने सारी अपडेशन कर दी है। अब से जो भी स्टडी मटेरियल बचे हम डिस्कस करेंगे, वर्कशीट, दे विल ऑल गो ऑन द ऐप, ठीक है। इट विल नॉट बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके, ऑलराइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर।